Yes, let's be continued with adolescence. So, what is adolescence? The age group between 13 to 19 years is called as adolescence. Means जो young generation का जो पीरियड रहता है, इट इज़ कॉल्ड एज एडोलेसेंस. मीन्स तब सेक्सुअली मैच्योर होते हैं. जो भी किड्स रहते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होना स्टार्ट होते. तो ये जो एडोलेसेंस का स्टेज है 13 to 19 years, it is grouped under 3 periods. See, early period, that is the age between 10 to 14, मीन्स 10 से 14 साल के बीच का जो पीरियड है, इट इज़ कॉल्ड एज अर्ली पीरियड. देन 15 to 17 years मिडल पीरियड एंड 18 to 19 इज अ लेट पीरियड ऑफ एडोलेसेंस. तो क्या क्या होता है देखो इसमें. द अर्ली पीरियड इंक्लूड्स अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट होते हैं. व्हाट आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? सी, इन मेल वॉइस चेंज होता है एंड इन फीमेल्स डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड दिखना स्टार्ट होते हैं और डेवलप होना स्टार्ट होते हैं. देन इन बॉयज़ में बियर्ड एंड मुस्टैच ग्रो होना स्टार्ट होती है. मीन्स दाढ़ी मिशा येतात. देन रैपिड फिजिकल ग्रोथ. फिजिकल ग्रोथ मीन्स हाइट बढ़ जाती है. देन कॉन्क्रीट थिंकिंग, थिंकिंग कॉन्क्रीट होता है. सेल्फ एक्सप्लोरेशन, डेवलपिंग बॉडी इमेज, डेवलपमेंट ऑफ इंटेंस फ्रेंडशिप. तो ये 10 to 14 ईयर्स के पीरियड में पॉसिबल हो सकता है, होता है. मिडल पीरियड, दैट इज़ 15 to 17 ईयर, शो फुल्ली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. Attainment of 95% of the adult stature. Abstract thinking, re-establishing of body image, sense of leadership and all powerfulness. Then preoccupied with romantic fantasy, ability testing to attract opposite sex, peer group help defining behavioral code. Then the late period 18 to 19 years, characterized by establishment of total physical maturity, establish abstract thinking, intellectual and functional identity. पीयर ग्रुप, ये पीयर जो है, पीयर ग्रुप मीन्स फ्रेंड सर्कल जो रहता है उसको ही क्या कहते हैं, पीयर ग्रुप. recedes in favor of individual relationship, stable relationship and change from childhood to adulthood relationship. मीन्स आफ्टर 19 ये एडल्ट स्टेज आ जाता है. तो ये जो पीरियड है इन बिटवीन 10 to 19 years is called as adolescence. The physical changes of adolescence. See, growth sports boys, development of muscle, oily skin, broadening of shoulders, then cracked of voice, development of body hair, enlargement of penis and testes. ये क्या होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं इन बिटवीन दिस एज. गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज़ मेमोरी ग्लैंड, वाइडनिंग ऑफ हिप, development of underarm and pubic hair, enlargement of uterus and ovaries. So these are the physical changes seen in girls. Sexual development, that is maturation of sex organs. Sexual desire, क्या होता है, मेल्स इरेक्शन ऑफ पेनिस इन बॉयज़ एंड स्पर्म प्रोडक्शन एंड इजैकुलेशन. And in female, ovulation and menstruation, initiation of sexual behavior. Ovulation and menstruation means जो periods जो कहते हैं वो आना start होते in the girls. Then emotional and social change क्या होता है, सी, establishment of self identity, fantasy, daydreaming, attention seeking behavior, emotional instability, full of energy, sexual attraction, rapid mood changes, conflicts with family, behavioral code, that is influenced by peer group. मीन्स एज, इस एज स्टेज में क्या होता है, हम लोग जो भी अपने साथ पढ़ने वाले या अपने साथ सीखने वाले जो भी फ्रेंड सर्कल रहता है उसके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा आते हैं. मीन्स घर के जो बड़े फैमिली में जो भी बड़े रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, उनकी बातें हमें
अच्छी नहीं लगती या सुनना नहीं चाहते, बिकॉज हम वो जो स्टेज रहता है वो फुल ऑफ एनर्जी रहता है। सी सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप, पीयर प्रेशर एक्सेट्रा। तो ये इमोशनल चेंजेस हैं। देन मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंस, सी confusion, irritation, moodiness, frustration, nausea, less concentration, hyperactivities, anger, effects on lifestyles like obesity, addictions, accidents leading to ill health, that is insomnia and loss of energy. Insomnia means नींद ना आना, sleeplessness को कहते हैं insomnia, and loss of energy. Thus mental disorders, psychosis and neurosis. Now let's we see what is psychosis. Psychosis involves disturbance in the thinking process leading to Alzheimer's disease, schizophrenia, depressive psychosis, etc. Other manifestation of psychosis are amnesia, that is loss of memory, bulimia, that is extreme overindulgence in food, then anxiety, that is fear or apprehension, means anxiety means डर लगता है, anorexia nervosa, that is emotional aversion to food, then depression, sadness, inactivity, reduced to enjoy life, etc. then neurosis क्या है, include schizophrenia, illusions, hallucinations, etc. तो ये जो स्टेज रहता है उसमें हम लोगों को अगर प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर फ्रेंड सर्कल नहीं मिला तो हम लोग बहुत रॉन्ग वे पे जा सकते हैं। तो ये जो स्टेज रहता है वहाँ पर अपना पीयर प्रेशर जो रहता है, फ्रेंड सर्कल या पेरेंटिंग जो केयर रहता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो हम लोग पॉजिटिव वे में अच्छे से जा सकते हैं। सी ट्रीटमेंट क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच, WHO मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम। तो इसमें काउंसलिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये पीयर प्रेशर के अंडर हम लोग आते हैं बैड हैबिट्स में, तो एडिक्शन भी इस एज से ही स्टार्ट होता है। सी एडिक्शन, compulsive use of substance like drugs despite of its harmful consequences, मीन्स ड्रग्स का हैबिट लग जाता है, हालांकि उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी के ऊपर वो पता होते हैं तभी। एग्जाम्पल अल्कोहल है, दैट इज़ ड्रिंक, opioids, cocaine, nicotine and behaviors such as gambling. Then addictive behavior are due to the neurobiological features which involve the neurotransmitter dopamine. Addiction, physical, physiological and psychological impairment. Addiction से क्या होता है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है। सी कॉजेस क्या है अभी एडिक्शन के, सी इनसफिशिएंट पेरेंटल सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। सबसे पहले तो इनसफिशिएंट पेरेंट्स का, पेरेंट मीन्स मदर एंड फादर का सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ना हो तो। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चाइल्ड के, बच्चे के बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो तो एडिक्शन के वे में जा सकते हैं। पुअरली डिफाइंड रूल्स, फैमिली के अगर प्रॉपर गुड हैबिट के रूल्स नहीं हैं तो। देन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, घर में अगर बहुत झगड़े हैं तो उसका असर बच्चों के ऊपर भी होता है, उनका मेंटल जो रहता है वो डेवलप नहीं होता प्रॉपर, वो भी बहुत कंफ्यूज एंड सैड हो जाते हैं। देन फेवरेबल पेरेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स अल्कोहल एंड ड्रग अब यूजेस, किसी किसी घर में ही बढ़ावा दिया जाता है ऐसे बैड हैबिट्स को, तो वो एक रीज़न हो सकता है। देन रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ये अगर फ्रेंड सर्कल में होता है, हाँ मैं भी पीता हूँ तू भी पी, तो इससे कुछ नहीं होता, थोड़े से इससे कुछ नहीं होता, तो ये बढ़ जाता है, वो एडिक्शन में कन्वर्ट होता है। मेथड्स टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़, अवॉइड अनड्यू प्रेशर। तो सबसे बड़ा क्या है कंट्रोल मेजर,
अनड्यू प्रेशर मीन्स फ्रेंड सर्कल का जो भी प्रेशर रहता है कि नहीं ये करना ही है, फ्रेंड सर्कल में कुछ बैड हैबिट्स को करना ज़रूरी नहीं है, तो सबसे पहले ना कहना आना चाहिए। जो सही नहीं है तो उस वे में जाना ही नहीं है। काउंसलिंग ऑफ चाइल्ड टू फेस स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कभी कभी बच्चे फेल होते हैं या किसी ने ना कहा है, जब जिससे प्यार करते हैं तो लव फेलियर, उसमें भी ये अब्यूज़मेंट की तरफ जाते हैं, मीन्स ड्रग अब्यूज़ से एडिक्ट होते हैं। तो ये काउंसलिंग बहुत नेसेसरी है इसमें। देन चैनलाइज द एनर्जी ऑफ चाइल्ड टू कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। जो भी अपना हाइपर एक्टिविटी है वो प्रॉपर वे में एक्टिविटीज़ में जानी चाहिए, प्रॉपर एक्टिविटीज़ में अपनी एनर्जी इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये एडिक्शन का जो भी है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ड्रग अब्यूज़ में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं ड्रग्स के नाम और उसके इफ़ेक्ट्स। तो हम लोग वो देखते हैं ड्रग अब्यूज़। सी ओपियोइड्स सोर्सेज लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट दैट इज़ पेपावर सोमनीफेरम। ड्रग हेरोइन, ये नाम आपने सबने सुने रहेंगे, मोस्टली ये मूवीज़ में रहता है। ड्रग्स के नाम रहते हैं ये जो है क्या है, हेरोइन सुना रहेगा। डाई एसिडिल मॉर्फिन, they bind to opioid receptor present in central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin acts as a depressant. Then cannabinoids sources क्या है, inflorescence of cannabis sativa. Drugs marijuana, then hashish, चरस एंड गांजा। ये चरस एंड गांजा तो सुना रहेगा। तो वो किससे मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, मीन्स जो फ्लावर्स रहते हैं कैनाबिस के उससे ये एक्सट्रैक्ट करते। इफेक्ट इंटरेक्ट विथ रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देन कोकेन सोर्स क्या है इसका, अल्कोलॉइड इरिथ्रोजाइलम कोका। Effect, it increase level of neurotransmitter dopamine. In excessive doses it causes extreme happiness, irritability and paranoia. Then next है hallucinogens, माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स। कौन से देखो उसमें सोर्सेस है, एट्रोपा, बैलोडोमा एंड डतूरा स्पीसीज। ड्रग्स लाइसर्जिक एसिड, इफेक्ट क्या होता है इसमें, डे ड्रीमिंग एंड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स आभास जिसे कहते हैं, मीन्स जो नहीं है वो भी दिखता है, इट इज़ कॉल्ड एज हेलुसिनेशन। अनरियल परसेप्शन ऑफ अनरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन, भास जो हो तो। देन एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। Addiction is a psychological attachment to a certain effect, that is euphoria and temporary feeling of well-being associated with drug and alcohol. Repeated use of drug increase the tolerance level of the receptor, which results in greater intake and addiction. Dependence क्या है देखो, the tendency of the body to show unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs is abruptly discontinued. The withdrawal syndrome includes anxiety, trembling, nausea and sweating. अगर ये एडिक्शन हमको दूर करना है तो मतलब हम फटाक से हम किसी का बंद करते हैं ये सब ड्रग, तो उसमें ये दिखता है, anxiety, trembling, nausea and sweating. तो इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल यूज, सी reckless behavior, then vandalism and violence. Excessive doses may lead to coma and death due to the respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage. Then warning signs of drug and alcohol use क्या है देखो, warning signs: drop in academic performance, unexplained absence from school and college. वार्निंग साइज मीन्स जो भी अल्कोहल, अगर हम लोग अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट है
तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं अपने लाइफ पे, वो दिया है इसमें। ड्रॉप ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस मीन्स आपका स्कूल कॉलेज में परफॉर्मेंस पूरा ड्रॉप हो जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल एंड कॉलेज में एब्सेंटीज ज़्यादा रहेगी। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, देन विड्रॉवल, आइसोलेशन, हम लोग अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेस हो जाते हैं। फटीग, थक जाते हैं। एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, बहुत गुस्सा आता है। देन स्पॉइल्ड रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ हम अच्छे से बिहेव नहीं करते। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, कोई भी हॉबीज़ रखना अच्छा नहीं लगता। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशन इन वेट, वेट लॉस होता है, ज़्यादा वेट गेन होता है एब्रप्टली। एपेटाइट एक्सेट्रा। सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस, क्राइम, अगर ये ड्रग अब्यूज़ ज़्यादा होता है मीन्स अगर प्रॉपरली ड्रग नहीं मिलता उस इंसान को, तो वो क्राइम भी करना स्टार्ट होता है मीन्स चोरी करता है, या घर से ही पैसे चुरा कर ये लेकर आते हैं। सीरियस इन्फेक्शंस लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस बी ड्यू टू द इंट्रावेनस इंजेक्शंस, liver cirrhosis and pancreatitis. Drug may be misused by sports person to enhance performance. Example, narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics and certain hormones to increase muscle strength to promote aggressiveness and improve performance. तो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनका ये तो नारकोटिक टेस्ट होता ही है। अगर ये नारकोटिक टेस्ट पॉजिटिव आया तो वो मतलब खेलने के लिए नहीं क्या किया जाता, खेलने के लिए उनको नहीं दिया जाता। Then side effect of alcoholic steroids. See, in female, masculinization increased, aggressiveness, mood swings, then depression, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on the face and the body, then enlargement of clitoris, deepening of voice. ये क्या है? Side effect of अनाबोलिक स्टीरॉइड्स के ये साइड इफ़ेक्ट्स है। इन मेल एक्ने मीन्स पिंपल्स, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बाल्टनेस मीन्स गंजापन, जिसमें बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं वो। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, दे ये सारे क्या है? साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टीरॉइड्स। अगर स्टीरॉइड ज़्यादा लेते हैं तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग बाय पेरेंट्स एंड द टीचर, ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आता है। मतलब पर्सन को खुद ही पता होना चाहिए कि क्या अपने लिए या अपने लाइफ के लिए सही है और गलत है, तो वो इंडिविजुअल ही खुद कंट्रोल कर सकता है ये ड्रग एब्यूज़ एंड उसके साइड इफ़ेक्ट्स। सो हियर वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।